लंबा सांस लेने का और लंबा सुलाएंगे मुंबई इंडियंस आए तो क्या बोलता है और भाई वो तो वही है ना, स्वैग तो भाई है ना, बोलता नहीं करके दिखाता है, हर शॉट पे वानखेड़े भर जाता है। क्या बोलता है भाई? दिल दादा बॉस बनता है भाई, बीडू सब मुंबई, this game of your life we play like Mumbai, we play like Mumbai, yeah. Welcome to the Manav Show, Kunal bhai. Thank you so much, man. और I should say you as the blue hoodie guy. Yeah. Okay, so ये आपका जो नाम है blue hoodie guy, इसकी पीछे की स्टोरी क्या है एंड ये कैसे आया है? Bro, it's a very cute story in a way because I remember YouTube का event था back in 2016-17ish, 2015 I would say, जब YouTube was still new in India. And तभी had this YouTube channel and तभी उनका एक workshop था. At अंधेरी only nearby somewhere we are shooting right now. So तभी उस event पे there were some 100-200 creators who had come together of the same subscriber base. Roughly let's say 1000 से लेकर 10,000 के बीच में. And we all met, exchanged numbers, but किसी को याद नहीं आ रहा है घर जाने के बाद कि कौन किसका नंबर है. So to tell them, I had to text them कि bro, I'm the guy in the blue hoodie. क्योंकि मैंने तभी एक blue hoodie पहना था, which is in my DP as well right now. So that is when I decided कि this is how I'll introduce myself. WhatsApp पे था तभी of course, but then when I got on Instagram, तभी नहीं था Insta पर. So a subscriber had actually forced me कि तू Insta पे क्यों नहीं है? You should be there. And तभी again Insta wasn't that much of a marketing ecosystem. But when I came, so I promised her once I think 10k subs हो जाएंगे, I'll come first and I'll follow you first. And that's when I came, I think 2016-17. Okay. And तभी I just thought कि this could be the right name, Blue Hoodie guy करके. And it has picked up well, surprisingly. It has picked up well and it goes with the MI thing also I जिसके know, साथ आप yeah. So आपने मुंबई इंडियंस कब ज्वाइन किया like? So I didn't join actually. So ये जो YouTube channel था, it started off with some random content. जैसे B Unique वगैरह if you remember the OG creators. So कुछ funny like Men Will Be Men videos और every MI fan ever ऐसे टाइप के अलग अलग experiment करते थे. We found out कि 2017 is जब मौका के बहुत बढ़ गया था, not in the original ad campaign, but Star was also reusing it a lot. Right. So तभी we made a मौका video during a T20 World Cup. Okay. अच्छा चला, we thought कि let's try it out. Then we did it for IPL also. Okay. फिर IPL main content बना for 2-3 years. Okay. And वहाँ से the journey just spiked up. कि 10k से फिर फटाक से 20, 30, 40. And तभी if you know, like I'm sure you're aware कि तभी subscribers आना was very difficult. Reels का concept exist नहीं होता था. Subscribers used to hold some value. Nowadays you see, which is a little bit sad कि 100k subs है but views 10,000 ही आ रहे हैं. तभी 100k के 100k views आएंगे because subscriber meant something. So तभी I remember around 2020 में, before the COVID, we had crossed 90k और 100k subs. Just Feb में. और हम लोग का ना प्री सीजन रहता था कि Jan एंड से हम लोग IPL वीडियोस डालना स्टार्ट. एंड तभी ही व्यूज ऊपर आते हैं, फिर आईपीएल का टाइम पीक होता था. सो वी हैड क्रॉस 100k इन मार्च इटसेल्फ. तो ऐसे था कि अभी तो एक महीने बाद आईपीएल है, सो 200k का भी मतलब रश कर सकते हैं हम लोग. एंड उतने में कोविड हिट. सो एवरीथिंग स्टॉप्ड, वी कुडंट शूट. एंड तभी तो पता नहीं था, इट वाज द कोविड सीजन 1. तो पहले वेव में तो पता नहीं, बाहर जा नहीं सकते, तभी जूम कॉलिंग, इंटरनेट वाजंट एज फास्ट, सो वी कुडंट शूट एनीथिंग, सो एवरीथिंग स्टॉप्ड. सो 110k वगैरह पहुंचे, फिर रुक गए. इवन आईपीएल डिडंट हैपन, सो हमारा मेन कंटेंट रुक गया. वी कांट इवन शूट फ्रॉम आवर प्लेस. करेंगे क्या अगर घर से भी कर रहे हैं. 6 months later and almost idle पड़ गया था. तभी I started a different channel which is called the Blue Hoodie Guy. I was into roasting and other stuff. And so this started in June. That I think 3-4 महीने चला था वो channel. It crossed some 60k subscribers in that phase because I used to post regularly. And Ganpati के time, I think it was day 1 or day 2 of Ganpati, I get a text on Instagram from Mumbai Indians official. And I ignored it first because notif में दिखा था, तभी वो टिक वगैरह दिखता नहीं था notif में. So I was like कि because what used to happen ना, हम लोग की videos के snippets लोग काटते थे, तभी shorts had come in. Not shorts, I think reels वगैरह आ गए थे. और even if not reels, people used to cut out short 10 सेकंड कुछ डायलॉग डाल के डाल दिया. एंड यूज्ड टू पोस्ट ऑन इंस्टा एंड यूज्ड टू मैसेज अस, सर हम लोग यूज करें क्या वीडियो. सो एंड दीज पीपल आर दे वेरी कन्वीनियंट, लाइक मुंबई इंडियंस विद 3 eyes. सो दिखने में लगता है मुंबई इंडियंस ही है, बट इट्स अ फेक अकाउंट, नॉट अ फेक बट अ फैन अकाउंट इन अ वे. तो मैंने इग्नोर किया था. एंड देन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम माय, सो 3 of us का चैनल था, शिवम, सानिका एंड आई.
तो शिवम कहते हैं ब्रो मुंबई इंडियंस से मैसेज किया है, तो बोला क्या बोल रहा है तू, आर यू श्योर? सो मैंने देखा तो देयर वाज लाइक हे वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर दिस? सो मैंने बोला श्योर, आई मीन एमआई बोल रही है तो डेफिनेटली. So I get on a call with them, and initially we thought, again, most of you OG YouTube viewers would know it, BUnique ने collab किया था मुंबई इंडियंस के साथ, Right. 2019 और 18, जब भी पोलार्ड, हार्दिक पांड्या सब थे. And that video, so we thought, since we are YouTubers, 100K subs है, we thought we also got a similar offer. Right. But तभी on the call they told us कि hey look, we are trying something completely new. हम लोग को एक शो करना है, hosted by the fans. And if things go well, then this could be like a proper long-term thing. Right. And it worked out great. Like everything fell into place. COVID था, season 2 COVID का तभी था. If you remember, the second wave had come in November-ish, जब ये IPL resume हुआ था. Right. And that is when I remember MI was dominating like anything. Right. Destroy कर रही थी सबको. So घर पे और कुछ देखने के लिए था नहीं viewers को. So MI live show कुछ नया मिला. MI is winning. We were the hosts तभी. Right. Viraj Ghelani was the main host तभी का, and me, Shivam Sanika were the YouTubers as a co-host for him. And like everything fell into place. And इतना अच्छा चला कि अभी 4-5 years हो गया अभी. So 2020, 21, 22, 23, 24. This is the 6th year. Oh. Also, I'm saying this right now. In the next couple of episodes, it will be the 100th episode of MI Life. Okay. It has been a phenomenal Congratulations ride. for that. Thank you so much. Yeah. Okay. So अब जैसे आपने बोला था कि व्यूज़ मिलना बहुत मुश्किल था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. सो ऐसा मोमेंट कभी आपके लाइफ में आया था कि जैसे आपने बोला एमआई ने मैसेज किया एंड यू वर वेरी शॉक्ड, बट ऐसा कि भाई आई हैव मेड इट, मैंने लाइफ में कुछ फोड़ा है, लोग मेरे को भी देख रहे हैं, ऐसा मोमेंट आया? I wouldn't say कि इतना बड़ा लगा because I used to always see other creators जिनका already हो रहा है. So I didn't feel कि मेरा कुछ unique हो रहा है. But I feel very nice जब लोग streets में देखते हैं ना. Like this used to happen in 2018. So it's a ritual for me कि every IPL में MICS के जाके देखना है. Okay. So जब भी उस मैच के लिए जाता था तभी someone used to recognize. फोटो क्लिक किया, आपके वीडियोस देखे भैया बहुत अच्छे हैं वगैरह. That used to make me feel good. Not in a way कि I've achieved something too big because I've seen creators do a lot more. BUnique, Bhuvan Bam, Ashish Chanchalani, of course. But अच्छा लगता है when people show up and they speak. And now it has grown a lot. I mean after the COVID का जो हुआ था उसके बाद जो MI Live, lots of projects. So now it happens more frequently. But 2016-17 में जब you're hardly at 10K subscribers, it used to feel really special. Okay. Yeah. सो ये तो आपकी बात हो गई. नाउ लेट्स गो टू मुंबई इंडियंस. Sure. आप क्लोजली इतना काम करते हो, देखते हो प्लेयर्स को, यू सी ऑल द मैचेस दैट आर हैपनिंग एट वानखेड़े. Right. सो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस इन 2008, द ओजी टीम के बारे में. सो एट दैट टाइम पे वो जो टीम थी, आपको क्या लगता है वो कैसी थी, एंड हैज दैट लेट मुंबई इंडियंस टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन राइट नाउ? डेफिनेटली यार, तभी का टेल यू 2008 का जो सीजन था, सो इट वाज न्यू IPL. एंड मेरे घर पे लाइक मॉम डैड यूज्ड टू बी द प्रॉपर क्रिकेट फैंस. उनको वो पच नहीं रहा था कि व्हाई इज दिस हरभजन सिंह हु इज अ पंजाबी प्लेइंग फॉर मुंबई, राइट, और अ मुंबईकर प्लेइंग फॉर अ डिफरेंट टीम. वो क्या हो रहा है? सो वो पचने के लिए टाइम लग गया था थोड़ा सा. एंड आई थिंक दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर एवरी इंडियन तभी के लिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. But it was fun cricket to watch. I remember watching season 1 के end के matches. तभी I think MI का already campaign was not derailed, but we were not much into it. I remember watching, मुझे vividly याद है memory of the युवराज सिंह का जो run out हुआ था Jaunty Rhodes वाला. Like he had done a Jaunty Rhodes style run out, and I think hat trick of run outs हुए थे, which we did right now. Similar अपने साथ हुआ था. In 2008 only, if I'm not wrong. I hope I'm correct about this. Okay. And it was against Punjab. Kings 11 पंजाब तभी. UV was the captain, and if we had won it we would be qualifying. ऐसे कुछ situation था, and that hurt me a lot, and that's when I knew कि अभी अगले साल follow करना है मुझे. And innocent me, I think I was some 10-year-old, 2008 right, I'm 98 born, so 10 साल का रहूँगा, 11 साल का. so तभी मैं जिस दिन नॉकआउट हुआ रात को गूगल पे देख रहा हूँ अगले साल का शेड्यूल क्या है. क्वाइट इनोसेंटली कभी मुझे दिखाने इन पंजाब वालों को. So I think that was my very first memory as well. And sure, and I think तभी के players, you'll also help me out with this. Jai Surya, remember Sachin, Zahir was there first season. Yes. Manish Pandey was there, by the way, which I got to know very recently. Bravo भी था I guess, but it came से बाद में आया. I remember a Dilhara Fernando. हाँ. Curly Sri Lankan guy. He used to do a bowling bit. Right. Sean Pollock was there. He was there for second season. I don't know second first season में थे वो. But yeah, lots of such memories. Abhishek Nair was a part of us. Yeah, Abhishek Nair part थे मुंबई इंडियंस के. So ये सब मुझे memories बहुत अच्छे से याद है. So I think definitely, I mean जो legacy set हुई थी, Sachin Tendulkar being the face and icon of the team, it
डेफिनेटली हेल्प कि एक लेगेसी बिल्ड करनी है, नॉट जस्ट कि एक सीजन जीतो, एक कल्चर सेट करना था. एंड यू हैव टू लिव विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द इमेज दैट यू हैव, लाइक सचिन तेंदुलकर, गॉड लाइक ऑरा चाहिए, नॉट बीइंग टू कॉकी अबाउट योर विंस, नॉट बीइंग टू डिजेक्टेड आफ्टर द लॉसेस. सो आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट. अभी जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर सर की बात कर रहे हैं हम. सो जब उनकी बात करते हैं, सो जब 2008 से जब MI का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, तब से ही इज बीन इन द टीम ऑफ MI. Do you think he has led a very good foundation for the team? And right now also he's a mentor, I guess so. Icon for Mumbai Indians. Correct. So कैसा है, मीन्स उन्होंने जो फाउंडेशन लेड किया है, हैज इट हेल्प मुंबई इंडियंस इवॉल्व? डेफिनेटली यार, मुझे बहुत सारे प्लेयर्स जो यंगस्टर्स से बात होती है ना, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन फ्रॉम महिला, सचिन, पोलार्ड. सो महिला, पोलार्ड तो एक जनरेशन आगे के हो गए, बट जो बीच वाला जो era था ना 2014-15 वगैरह, तभी के जो प्लेयर्स थे हु आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स राइट नाउ एंड स्पीक विद अस, दे ऑलवेज टेल कि सचिन पाजी से जो टिप्स मिलते हैं अबाउट बैटिंग, लिटिल डिटेल्स जो हमें शायद समझ भी ना है कि इतना क्या है उसमें, बट दोज डिटेल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर दोज बैटर्स. एंड इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स एज वेल, बहुत बार होता है कि सचिन इज टेलिंग कि ऐसे खेलने से मुश्किल पड़ता है, दैट्स हाउ द बॉलर इज लर्निंग. सो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल्स है. ऑफ कोर्स द प्लेयर्स डोंट शेयर दोज डिटेल्स बिकॉज उनका एक्स फैक्टर रहता है, बट लॉट्स दैट हैज बीन लर्नड. एंड ऑल्सो अबाउट बीइंग हम्बल, बीइंग लाइक ग्राउंडेड रहना जो रहता है. 100 सेंचुरीज के बाद नॉट वंस यू हैव सीन दोज एग्रेसिव सेलिब्रेशंस और समथिंग, नॉट दैट इट्स रॉन्ग, बट सचिन का जो ऑरा है, ही इज ऑलवेज लिव्ड दैट एंड कंटिन्यूड दैट. सो जब MI की बात आती है अबाउट कल्चर ऑल्सो, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सो जब कल्चर की बात आती है, MI इज नोन फॉर वन फैमिली, राइट, एंड सबको साथ लेके चलते हैं वो. सो उसके बारे में बताओ ना कुछ, बिकॉज हर जगह वन फैमिली होता है. अगर हम प्रीवियस के भी प्लेयर्स जो मुंबई छोड़ के भी गए हैं, स्टिल उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है. सो हाउ इज दिस कल्चर केम, बिकॉज बाकी टीम में हम इतना देख नहीं पाते. राइट. So I'm not sure start कहाँ से हुआ, कब से हुआ, but it was a gradual thing मेरे हिसाब से. They also realized after maybe 2013-14 वगैरह कि it's not just about कि ये सीजन जीत गया, like I said before also, कि let's build a culture, a winning culture. And उसके लिए you need to feel कि एक, पता है जब 2011 और 13 का जो era था, like धवन, रोहित, धोनी वगैरह, एक सेट था कि मुझे पता है कि इसके बाद ये आएगा, इसको इसका रोल पता है, that player knows what to do. एक ट्रस्ट था, एक यूनिटी थी सॉर्ट ऑफ. एंड उसके लिए यू नीड टू बैक दीज प्लेयर्स बिकॉज प्रेशर बहुत रहता है. आई नो सो मेनी प्लेयर्स, समवन लाइक ईशान किशन एज वेल, बेचारा इतने प्रेशर में था बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग, एंड द टीम हैज नॉट पुट एनी प्रेशर, बट फैंस इतना बोलते रहते हैं, ब्रो इतने प्राइस में क्या देगा. लाइक राइट नाउ ऋषभ पंत का भी रिमेंबर, लॉट्स ऑफ पीपल रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, 27 crores मिले डिवाइडेड बाय 14 मैचेस, पर मैच में कितने बॉल खेल रहा है, तो अरे ये 30 लाख का पर बॉल है एंड ही स्कोरिंग 0. इट डजंट वर्क दैट वे, एंड इट जस्ट like messes up with the player's head. So yeah, I mean, what was the question? So I just got drifted into the question was जो one family का अपना है मुंबई इंडियंस का. So how have they developed the culture and how is it helping the players also? So it there's a sense of relief as well. जैसे अभी अपना टॉप ऑर्डर का भी कंसर्न था, they back them really well. Right. ईशान किशन, सूर्या, पोलार्ड, कोई भी रहेगा, इवन पोलार्ड, that speaks volumes जो MI ने कल्चर बिल्ड किया वन फैमिली वाला, कि he literally said it कि अगर मुझे like MI hasn't like renewed my contract as a player, but अगर मुझे MI के साथ खेलने नहीं मिल रहा, I don't want to play against them. That's the kind of connect that he has. Even CL T20 जब ये होता था, you remember lots of these foreign players choosing IPL teams, especially MI, over the national teams. The reason is they feel at home, and that helps because एक sense of calm रहता है. It shouldn't feel already field पे आपका battle चल रहा है सामने टीम के साथ. You're battling the press, fans, criticism, everything. तो टीम के साथ तो एक लगे. एंड उस पर MI has done brilliantly. To an extent, I would say, चेन्नई का भी वही सिचुएशन है, और एटलीस्ट यूज्ड टू बी अप अंटिल वेरी रिसेंटली. एंड दैट्स व्हाई दीज आर द टू मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स एज वेल. नहीं तो आप सिंपल एग्जांपल देख रहे हो, समवन लाइक RCB, KL was their poster boy just after Virat Kohli. I remember KL being their poster boy, but he's not a part of them. चहल का देखा, लग रहा है अभी चहल इज सिनोनिमस विद देम, चला गया. सिराज इज सिनोनिमस, चला गया. एंड चले तो जाते हर टीम में प्लेयर्स, बट these were literally, अभी जैसे it's like letting go of सूर्य कुमार, बुमराह, MI has kept them. चाहे अपना like बैंक ब्रेक करना पड़े, like ऑक्शन पर्स चले जाए, but we'll pay those 13 crores for ईशान किशन, जो किया भी है. हार्दिक पांड्या को भी वापस लेके आए. करेक्ट, या to maintain that core team. Of course, yeah. बट आई थिंक MI का सबसे ज़्यादा जो बड़ा शिफ्ट था 12-13 में जब रोहित शर्मा को लिया.
कैप्टेंसी उनको मिली, एमआई जो शिफ्ट हुआ है उसके बाद। करेक्ट। सो उसके बारे में कुछ बताओ ना कि डिड दैट चेंज एमआई's पर्सपेक्टिवली, टैक्टिकली आल्सो, इमोशनली आल्सो? या सो आई विल पुट इट दिस वे। तो मुझे फैन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बोलता हूँ, बिकॉज 2014-15 का एरा था जब वी स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस। सो वी यूज्ड टू वर्क विद भारत आर्मी एज वेल, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग टीम इंडिया। यू मस्ट हैव सीन द बिग फ्लैग्स वगैरह। सो उनके भी जब वॉक्स पॉप करते थे, वी यूज्ड टू सी अ ट्रेंड कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फैंस वुड चूज धोनी या कोहली में से। सम फैंस वी स्टार्टेड नोटिसिंग 2016-17 वगैरह के एरा से, they were picking Rohit Sharma as well. Right. So gradually I saw Rohit Sharma becoming that phenomenon. नहीं तो पहले it was just Dhoni main, धोनी के बाद it was Kohli. And Rohit was always there but not that hype. But जो 2013, 15, 17 में रोहित ने किया है, he has achieved everything with his brilliant captaincy. And अभी भी आप देखते थे, अभी फील्ड पे भी जब हार्दिक कैप्टनिंग इट, he's in the dugout, रोहित शर्मा, he's helping. तो जो लीडरशिप ग्रुप जो है, it is beautiful the way they are handling. एंड व्हेन इट कम्स टू रोहित का 2013 का, आई विल टेल यू, मुझे लगता था रोहित उस टाइम पे ना काफी इनकंसिस्टेंट बैटर था। इफ यू रिमेंबर द स्कोर्स एज वेल, इट वाजंट कि यू नो कि ही इज गोना स्कोर अ लॉट, ही स्किल्ड टू स्कोर अ लॉट, बट करेगा कि नहीं पता नहीं। बट आई रिमेंबर वॉचिंग, डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स एज वेल, जिस दिन उसको कैप्टनसी मिली फ्रॉम, इफ पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ सीजन, एंड तभी से उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, विच इज द ऑपोजिट विद ऋषभ। मुझे लगता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सम प्लेयर्स एक्सेल, सम गेट अंडर प्रेशर। ऋषभ फ्री रखो बहुत अच्छा खेलेगा, कैप्टनसी देख के ही स्ट्रगलिंग। रोहित को कैप्टनसी नहीं देके, रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के वो इतना अच्छा नहीं खेलेगा। बट द मोमेंट एमआई गेव हिम द कैप्टनसी इन 2013, थिंग्स टर्न्ड अराउंड। एंड उसके बाद से ही हैज बीन अ कंसिस्टेंट प्लेयर इन इंडियन टीम एज वेल। IPL में तो you've seen the way he handles, मेरे हिसाब से he was a lot of bowlers captain kind of a thing, कि bowlers को कैसे कंट्रोल करना है। Like usually captains, I agree in terms of बैटिंग की तरफ से भी रहते हैं, ये स्ट्रैटेजी रखते हैं, ये ऑर्डर रखते हैं। बट रोहित ने तभी जो किया था कि 120 को भी चैलेंजिंग टोटल बनाना है। Hats off to the way he used to pull it off. वो जो फाइनल हुआ था पुणे के सामने, my favorite one. लो स्कोरिंग वन, एंड रोहित की कैप्टेंसी जो थी उसकी वजह से तो एमआई जीत पाया वो। Yes. काफी that was your favorite final? No. Which one is your favorite? So my favorite match I will say is match I will say 2014 Aditya Tare hitting that six where Mumbai Indians qualifies. वो अभी तक विजुअल है कि भाई वो बॉल पे सिक्स मारा तो मुंबई इंडियंस क्वालिफाई होगी, वरना नहीं होगी। Like that. So that's your favorite match? That's my favorite match. So final was against Pune obviously. 2017. So many people pick the 2019 one, but that has to do with कि चेन्नई को रहा है, which I understand, emotions है, but यार जो 2017 का विन था, no, like we had ruled ourselves out. Yes. I remember रोहित शर्मा तभी आउट होने के बाद ऐसे सोया भी था डग आउट में, but he was making a plan. Right. वो तो था ही. That's why he becomes the great player in himself. हाँ. 3 double centuries है रोहित शर्मा की. So he is a great player in himself. जब हम बात करते हैं like players like Pollard, Malinga, Pandya, how did this mix became the core of MI's dominance? Bro, I am surprised because मुझे ऐसा एक फेज याद नहीं है. Usually ऑक्शन के बाद होता है कि हाँ ये हमारे कोर है. This happens with most of the teams. Right. MI का 2-3 साल बाद हुआ कि oh these were our core. Yeah. So ऐसा कभी हाइप नहीं हुआ कि अरे ये प्लेयर्स है, these are going to be a core, आपको बनना है. I think it gradually happened. And MI like hung on to them. वो ज़्यादा important है. Right. अभी मलिंगा रिमेंबर एक सीजन था यॉर्कर्स पढ़ ही नहीं रहे थे, but we still backed him. Right. There has been some odd overs from Trent Bolt. बुमराह से तो स्टार्ट में कितने एक्स्ट्रास होते थे, but you have to back these players. And यार मेन MI का like मेन विक्ट्री का we win the IPL championship. MI wins the championship in the auctions. Right. जो स्काउटिंग करते हैं ना, लाइक बुमराह को 10 लाख में 20 लाख में उठाया, हार्दिक पांड्या, कृणाल, तो उनका ना एक पूरा एक नेक्सस या पूरा सेटअप है, लाइक इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वेयर दे गो टू दीज रैंडम टूर्नामेंट्स एज वेल. दीज आर नॉट रैंडम ऑफ कोर्स बिकॉज ऐसे टैलेंट्स निकल रहे हैं, बट यू वुड गो टू व्हाट सम रणजी मैचेस, मुश्ताक अली देख लिया या फिर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग देख लिया, बट दीज पीपल गो इन स्कूल टूर्नामेंट्स. दे हैव दीज स्काउट्स हायर्ड एट रैंडम प्लेसेस. लिटरली आई वोंट बी सरप्राइज टर्फ पे भी देखते रहेंगे बिकॉज ऐसा टैलेंट शायद से ये फील्ड पे अच्छा कर लेगा. वैभव सूर्यवंशी, या मतलब आईपीएल ही पूरा स्काउटिंग अच्छा है, बट एमआई का स्काउटिंग अलग लेवल का है. मतलब जैसे वो प्लेयर्स लेके आते हैं, ये सीजन में भी बहुत अच्छे विघ्नेश पुथुर, केरला का प्लेयर, यूज्ड टू प्ले अ स्कूल टूर्नामेंट, एंड अगेन दे वर सो स्मार्ट. स्कूल टूर्नामेंट में देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे प्लेड वेल. दे टुक हिम टू केप टाउन का टीम SA20, वहां पर बॉलिंग करा विद रशीद, विद लॉट ऑफ द प्लेयर्स जो वहां पर है हमारे साथ. एंड दैट शोड ऑफ, क्योंकि इट पेड ऑफ बिकॉज दिख रहा है अभी कितने अच्छे विकेट्स निकाल रहे हैं.
सो इट्स काफ़ी एंड इट टेक्स अ विजन. 2-3 चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट कि स्काउट ने बताया, उनको बताना इज वन थिंग, द प्लेयर ऑल्सो हैज़ टू परफॉर्म, उसके ऊपर द मैनेजमेंट हैज़ टू बैक. अभी अगर ब्रेविस को एक मैच के बाद छोड़ देते या फिर ईशान किशन को, नहीं होता. बुमराह को भी एक ओवर में ही छोड़ सकते थे, नो बॉल गए थे, बाउंड्रीज गए थे, बट उसी ओवर में ही गॉट आउट. डिविलियर्स, कोहली इज द फर्स्ट विकेट, कोहली इज द फर्स्ट. हाँ, एंड डिविलियर्स वगैरह. सो इट्स अ लाइक यू सेड वन फैमिली है वो, कि सब लोग एक दूसरे को अच्छे से बैक करते हैं एंड दे वांट रिजल्ट्स, बट दे अंडरस्टैंड अगर रिजल्ट्स नहीं भी आएंगे तो दे अंडरस्टैंड कि प्रोसेस तो सही चल रहा है. राइट. सो अगर हम बात भी करें बुमराह की, जैसी बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग में हम देखते थे काफी नो बॉल्स पड़ते थे, काफी एक्स्ट्रास जाते थे, स्टिल मुंबई बैक्ड देम. अभी क्या बॉलर है. हाँ, इवन द एक्शन वाज वेरी डिफरेंट, एक्शन वाज वेरी वियर्ड, उस पे भी लोगों ने मजाक उड़ाया था. बट अभी वही है कि अभी it has become a trend कि ऐसे बुमराह जैसे बॉलिंग करता है मेरा बेटा. That happens a lot. Even I remember बुमराह का जब भी हुआ था तभी अमिताभ बच्चन ने ट्वीटेड, I love the way he bowls, ऐसे कुछ तो काफी स्पेशल मोमेंट था which I remember. Right. Because we were all like कि भाई कुछ अलग, कुछ अजीब लग रहा है देखने में. The action was odd. एक्स्ट्रास जा रहे हैं, बाउंड्रीज जा रहे हैं, आरसीबी यू नो एक 4-6 के बाद जो इतना हाइप अप हो जाते हैं वो फील्ड पे, विराट कोहली. एंड देन यू सी बुमराह बिकम ऑल्सो, इफ आई वुड नेम एनीवन, बट सम सीनियर क्रिकेटर हैड मेंशन्ड कि तभी वो कोहली के पास गया था कि हाउ टू प्ले अ बुमराह, एंड तभी एक उसका फेमस कोट था, ही सेड अरे छोड़ने, अरे बुमराह क्या कर लेंगे. राइट. You've heard this, right? I won't name it because मेरे दिमाग में 2 नाम है, उसमें से किसी ने बताई थी स्टोरी ऑन दिस पॉडकास्ट. बट इट जस्ट शोड यार कि कैसे प्लेयर्स उठाकर, और प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत क्रेडिट यार, इतना प्रेशर में परफॉर्म करना है. अश्विनी कुमार दिस सीजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. मैं रमनदीप सिंह का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उसने बोला था कि एमआई का खुद का एक ऐप है जहाँ पे वो प्लेयर्स के स्टैट्स दे सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. सो मुंबई इंडियंस इज टेकिंग अ लॉट इनटू इट कि प्लेयर को नर्चर करना है. आई फील उनका सिर्फ आईपीएल एक विजन नहीं है, दे आर लुकिंग एट अ ब्रॉडर पिक्चर जहाँ पे इंडिया को जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. Bro, I'll add to this also. जो I'm not sure if you're following K. Srinivas Rao on Twitter. काफ़ी उनके ट्वीट्स वगैरह रहते हैं अबाउट क्रिकेटिंग इनसाइड, नॉट इनसाइड इन्फॉर्मेशन बट ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन जो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. टर्न्स आउट एमआई का कहीं तो एक प्रॉपर सेटअप है, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, मोर लाइक यू कैन कॉल इट अ फैसिलिटी, जहाँ पर प्लेयर्स, इफ़ यू फील लाइक इफ यू आर एन इंडियन प्लेयर, नॉट इवन एन एमआई प्लेयर, अगर आपका मन कर रहा है कि आपको सीखना है या फिर कुछ इंप्रूव होना है, यू कैन जस्ट सिंपली गो ओवर देयर एट अ नो कॉस्ट एंड दे विल ट्रेन यू, गिव यू द बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, एवरीथिंग, and they'll make you the better version of wherever you want to excel. And this is applicable or available for every Indian player. If I'm not wrong, Indian player, but need to fact check this because K. Srinivas Rao had given us whole thread of 20 odd tweets जिसमें वो सिर्फ new information बता रहे हैं. And this adds up to the vision which you said कि उन्हें सिर्फ मतलब MI के लिए नहीं करने, उनको टीम इंडिया के लिए करना है. So even if you are let's say an Akshar Patel from Delhi, you feel कि नहीं यार अभी फिलहाल I need, or Robin Uthappa, who's maybe not in the setup but can make a comeback. Right. So he can just visit over here, tell कि नहीं मुझे अभी ना let's say 6 hitting ability better करनी है. You can come. Okay. So that's a beautiful, बहुत अच्छा है, yeah. एंड एमआई ऐसे इनिशिएटिव्स काफ़ी करता है, मतलब मैंने भी देखा है, वो शायद टर्फ टूर्नामेंट्स वगैरह भी कुछ दिस सीजन वो भी मैंने देखा था कि वो भी टर्फ टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं. राइट. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग जो एमआई कर रहा है, जो आई थिंक बाकी टीम्स इतना नहीं करते हैं. राइट. सो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है एमआई का ऑल टाइम अंडररेटेड प्लेयर कौन रहा है एंड क्यों? टफ वन यार. अंडररेटेड, इट्स डिफिकल्ट टू हैव एन अंडररेटेड प्लेयर इन अ टीम लाइक एमआई क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को प्रेज और हाइप मिल जाती है. आई वुड से एक जो अंडर द रेडार गया हो, मे बी नॉट अंडर रेटेड एज सच, उसको काफी रिस्पेक्ट मिला है, मिचेल मैक्लेनेगन. ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर सेटअप फॉर 2017 विन. Yes. 2019 maybe he was a part, just need to fact check this. Right. But he has been around for a while. Right. And he has delivered time and again. जब भी डेथ में भी बॉलिंग करता था, टॉप ऑर्डर में भी. And एक बार वो शो में आया था and we were having, तभी he was not a part of MI setup and he was just chit-chatting. And तभी we just had a question कि MI are known as slow starters, कि स्टार्ट में जीतते नहीं है. तो how does that make you feel? Is there a lot of pressure on you? तो उसने जो डिफेंड किया था MI को, he said कि we are not slow starters. एक हाथ 2 मैच हारते हैं फिर वो इमेज बन चुका है. You notice 2015, 17 वगैरह we have topped the table. Right. Even 2020. Right. तो वो इमेज बन चुका है कि ठीक है पहले 2 हारते हैं ना तो इनको स्लो स्टार्टर्स बुलाते हैं. And there has been 1-2 comeback stories. 5 हारने के बाद सीधा ऊपर चले गए. So that has happened once or twice, but
most of the times we have topped the table. So हम लोग पूरा domination में ही रहते हैं and it's fine. It's the other way around. कुछ लोग end में हारते हैं, हम लोग start में हारते हैं. It's balance out हो जाता है. बट वो एमआई को वही बोलते हैं बिगेस्ट कमबैकर बोलते हैं. हाँ. हर हमेशा कमबैक करते हैं. Always, ये always. सीजन में भी वही हो रहा है. Seriously, yeah. सो मेरे को Who would be yours, dude? I want to know from you. Underrated में कौन लोगे आप? That's a tough question actually. एक्चुअली इट्स अ टफ Sean क्वेश्चन. Pollock में भी शॉन पोलॉक उतना hype नहीं मिलता. उतना हाइप नहीं मिला He used उनको. to lead when Sachin was injured or सचिन वाज something. Season 2 में he was सीजन 2 there. में थे. बट मेरे को अभी भी आदित्य तारे बहुत अंडररेटेड लगे थे बिकॉज उनका कंसिस्टेंट भी थे, काफी अच्छा खेले भी थे. बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो चले गए, मतलब ही वाज नोवेयर देन एंड दिखे नहीं एंड गायब हो गए वो. हाँ, maybe even so, but the problem was तभी विकेट कीपर का स्पॉट ही कम रहता था. So वो भी था, QD के था, भी थे. हाँ QD के था, बीच में कार्तिक था हमारे पास. There was like lots of wicket keeper options. ईशान किशन, अभी रैन रिकल्टन. So it's of मेरे हिसाब से मैं और सोचने का ट्राई कर रहा हूँ अंडररेटेड में. शॉन पोलॉक we said. कोरी एंडरसन भी नहीं, अंडररेटेड नहीं था. कोरी एंडरसन किया. हाँ, he did what he could. जितना कर सकते थे वो करके चला गया. पूरा निचोड़ के हो गया था उसका काम. It's tough यार actually. It's very tough. बट हाँ ये एक दो तो है. सौरभ तिवारी में भी एक दो सीजन खेला था, बहुत अच्छा खेला था. और अभी भी 2 साल पहले शायद वो वापस उसने आया था मुंबई इंडियंस में. He was a part of. उसका निकनेम भीम था. बहुत अच्छा खेला था. हाँ. Right. He was a Raidu. हाँ, to an extent people don't remember और credit Raidu to MI जितना वो CSK की तारीफ करते हैं. वो तो ठीक है अभी. So हाँ, अभी तो हाँ, वो तो धोनी चालू है तो वो तो ठीक है. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड आपने एमआई को बैक से भी देखा है, पीछे से भी देखा है. सो एमआई ने एज अ टीम क्या सैक्रिफाइसेस किए जो उनके फैंस नहीं देखते? I think letting go of a lot of players. अगर आप पूरा देख लो, I always call this कि IPL mega auctions are a conspiracy against MI. मस्त टीम बिल्ड करो एंड ब्रो इट्स एन इन्वेस्टमेंट. मतलब खर्चे होते हैं टू सेटअप अ स्काउटिंग का पूरा स्ट्रक्चर. उन्हें ट्रेन करो, फिट करो, उन्हें मैच रेडी करो, कंडीशनिंग पूरा सेटअप करो. ऑल की 3 साल, उसमें तो 1-2 साल जाएंगे. अगर 1 साल में हुआ तो अच्छा है, बट स्टिल 2-3 साल तो जाते हैं, एक सेट टीम बन जाती है एंड देन ऑक्शन आ जाता है. सो दिस इज अ बिग सैक्रिफाइस दैट एमआई हैज नेवर क्राइड अबाउट. बट आई वुड बी द फर्स्ट वन टू मेंशन इट एवरी टाइम कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट यार. एक प्लेयर में अभी ब्रेविस ले लिया सीएसके ने, ही वाज आवर इन्वेस्टमेंट. अभी मेगा ऑक्शन नहीं आते तो वी वुड हैव केप्ट हिम. मार्को यानसन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ मार्को यानसन कैसे पिक हुआ था? साउथ अफ्रीका, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट नेट्स में जब साउथ अफ्रीका टूर हुई थी हमारी टेस्ट सीरीज के लिए, तभी नेट्स में मार्को यानसन वाज अ नेट बॉलर फॉर जो साउथ अफ्रीका के साइड से दिए रहते हैं कि आप लोग, आपको इंडियंस को बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेक दीज बॉलर्स. मार्को यानसन वाज द ओनली बॉलर जिसने कोहली को 2-3 बार एज कराया था इन द नेट्स. ये एमआई के स्काउट को पता चला, वहां से साइन किया उसे. दे गॉट हिम इन द इंटरनेशनल सेटअप, एमआई सेटअप. फिर उसे इंटरनेशनल लाइमलाइट मिला. सो ऐसे प्लेयर्स, वो जिस सीजन मिला था अगले साल मेगा ऑक्शन हुआ था, चला गया. तो these are big sacrifices which people don't even realize कि MI, और not just MI to an extent, बहुत सारे टीम्स करते हैं. इंडिया प्लेयर्स देख, कमलेश नागरकोटी फॉर KKR, SRK और KKR could have just said कि नहीं यार उसकी इंजरीज बहुत है, we won't take care. 2 या 3 साल they took care of his injury, they paid him the entire amount, and they got him fit. So these little things you won't hear a lot about these stories जो टीम्स करती है प्लेयर्स के लिए, बिकॉज दे फील कि मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्यों मतलब ऐसा अनाउंस करते जाए. बट लिटिल थिंग्स वी हैव टू अप्रिशिएट. सो राहुल चहर की जब बात करते हैं, अभी एमआई ने उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया, नर्चर किया. अब वो खेल ही नहीं रहा, किंग्स 11 पंजाब ने उसको बिठा रखा है एंड ही इज अ वेरी गुड फाइंड, वेरी गुड स्पिनर. He's very good. So ये, but I think I won't blame Punjab Kings for that. वो हर टीम में ना प्रॉब्लम इज 11 ही लोग खेल सकते हैं. Only solution is add more teams. Yeah. That's because बुरा लगता है when you see someone like राहुल चहर, रमनदीप तो चलो खेल रहे हैं अभी ये साल, but you see these really good players जिन्हें चांस नहीं मिलते हैं and they go unsold in the auctions वगैरह. तो get more teams, हमें भी और फन रहेगा. I would love to have IPL as an all-round thing, जैसे प्रीमियर लीग फुटबॉल रहता है ना, हर वीकेंड मैचेस है. If you have an international tour, choose इंटरनेशनल जाने की यहाँ पर खेलना है. But I get it, it's a logistical mess to handle it. हाँ. और एक प्लेयर था जो उसके बारे में बोलना था, नील वडेरा. Oh yeah, of course यार, बहुत बढ़िया यार. ही तो it hurts to see these players not like ईशान किशन भी ऐसे टैलेंट्स.
गोइंग इन डिफरेंट टीम्स एंड प्लेइंग, बट अगर रहते हैं एमआई में अभी भी तो क्या डोमिनेंस रहता है? डेफिनेटली 2020 तो बहुत दर्द हुआ मुझे, 2021 के बाद के ऑक्शन, 2022 मेगा ऑक्शंस, जब भी पूरे टीम को लेट गो करना पड़ा, एंड आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट. सो थिंक ऑफ इट दिस वे, it's a cross format tournament, but like West Indies का team from the 70s versus ODI में ऑस्ट्रेलिया का mighty Aussie वाला team, and T20 में अपना. We need a tri-series tournament across formats. बहुत मजा आ जाएगा. गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कोई मैच आपको याद आता है जैसे मैंने अपना आदित्य तारे का किया, जैसे दैट मेड यू क्राई और चोक्ड यू अप एज अ एमआई फैन की? बहुत बिफोर दैट, सॉरी, यू स्पोक अबाउट सैक्रिफाइसेस. एक और चीज, इफ यू रिमेंबर, एमआई ने एक पूरा सीजन बुमराह को खिलाया नहीं था बिकॉज वर्ल्ड कप में खिलाने. हाँ. नॉट वंस एमआई सेड, इट वाज टोल्ड टू अस आल्सो कि आप लोग भी इसके ऊपर फ्लेक्स मत करो. इट इज समथिंग वी आर डूइंग इट फॉर द कंट्री, वी डोंट वांट एनी लाइमलाइट और तारीफ फॉर दिस. बट वर्ल्ड कप आ रहा है, 2023 वर्ल्ड कप, बुमराह हैड नॉट प्लेड अ सिंगल आईपीएल मैच बिकॉज दे वांटेड हिम टू बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप. तो पूरा सीजन तो छोड़ दिया. बुमराह जैसा प्लेयर, लाइक कॉस्ट इज वन साइड, बट जो लाइक मैच जो जिताते, राइट नाउ आल्सो वी आर सेइंग कि टीम खेल रही है वगैरह, बट जब से बुमराह वी हैव स्टार्टेड विनिंग. राइट, वो तो है. एंड जब हमने देखा था बुमराह ट्रेंट बोल्ट एक साथ बॉलिंग कर रहे थे, एंड बाद में वो सेपरेट हो गया था वो पूरा, बट इट वाज अ वेरी गुड थिंग. क्या डेडली कॉम्बिनेशन था बुमराह ट्रेंट बोल्ट, एंड लिटरली डोमिनेट किया था वो. ट्रू यार. सो गोइंग अहेड, मेरे को और एक चीज़, आपने सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या के साथ ऑब्वियसली आप मिले रहोगे, बात किया होगा, इंटरेक्शंस किए होंगे थोड़े बहुत? Little bit. Not with Hardik, with Surya, yes. Okay, but being as a fan, I would just like to know कि इतना वो confidence कहाँ से आता है, be it हार्दिक पांड्या, be it सूर्य कुमार यादव. अगर हार्दिक पांड्या को ऐसे ही बोलते भाई confidence है तो भाई आज जीतने वाले. हाँ. So player में confidence कहाँ से आता है? I think it's the individual character यार. वो हर player में फर्क पड़ता है वो. So I don't think you can train them. You can just give them a confidence from the team. जैसे a player like हार्दिक पांड्या, he wouldn't care team support कर रही है नहीं कर रही है. He will do his job. But a player like Maxwell और Travis Head, management से backing आना चाहिए कि तू खेल तेरा गेम, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. So I think it depends individualistic कि कहाँ पर रहता है. अभी सूर्य कुमार यादव, he is so chill, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता what's happening around him. वो अगर 200 भी मार दे, he'll still be the same person. अगर 0 पे आउट हो जाए तो भी he'll be the same person. सूर्या will always be that chewing gum चबाते हुए chill वाला guy. And he talks to people. Abhi very recently after the Chennai match, he made the young guy Ayush Mhatre. Ayush Mhatre तो चेन्नई का. He made him meet Rohit Sharma because Ayush की इच्छा थी कि एक बार बात करनी है. तो वैसे ही चिल में बोला इच्छा होता, बोला ऐसा. So ये very individual है, person to person है. Some players take pressure of the social media के trolls हो रहे हैं. Some take pressure of the auction, like जो price पे आया हूँ. समा लेके ठीक है मेरा हक बनता है. जोफ्रा एक बार बोल दिया था सीधा कि ब्रो, आई मीन आई नो पीपल आस्क कि यू नो ऑक्शन प्राइस, तभी ही वाज द कॉस्टलीस्ट बॉलर फॉर अस. तो बोला था कि उससे मेरा पेस बढ़ने वाला नहीं है. आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर दिस प्राइस. ऑक्शन में बिड होके टीम्स ने बिड करके उस प्राइस पे लेके गए. यू वांटेड दैट प्लेयर, दैट्स व्हाई द प्राइसेस टू दैट एक्सटेंड. उससे मेरा कुछ अलग परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है. एंड जितना ज्यादा जाएगा उतना प्रेशर ऐड होता है कि नाउ यू हैव टू डिलीवर करके. अगर सूर्य कुमार यादव की भी बात करें, he was part of a KKR setup for a long time. 4 years, 3-4 years, I think. हाँ, बहुत लंबे टाइम. बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत नीचे आते थे ऑर्डर में. जैसे एमआई की टीम में आए, ऊपर आना चालू स्विच हो गया. हाँ. एंड पूरा गेम बदल गया. राइट. स्पेशली द 6 जो उन्होंने आई थिंक सो बैक की तरफ मारा था, पीछे की तरफ. वो क्या 6 था, आई डोंट रिमेम्बर. ऐसा बैट के लेग में पीछे मारा था. तो बैट 6, एंड क्या फाइन मिला है इंडियन टीम को. राइट. तभी एंड आई हैव हर्ड गंभीर कंप्लेन कि दिस वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक इफ यू लेट गो ऑफ सूर्य कुमार यादव. सो गंभीर का भी विजन काफी अच्छा था विद सूर्या. आई थिंक सूर्या वगैरह का मुझे बुरा लगता है कि मतलब काफी लेट लाइमलाइट मिला. आई थिंक ही वाज डूइंग हिज जॉब वेल. श्रेयस अय्यर भी फॉर दैट मैटर, ही इज डूइंग रियली वेल इन मुंबई क्रिकेट. बट जो लाइमलाइट मिलना है, यू नो, आई थिंक इट्स जस्ट रिटन इन डेस्टिनी कि कब मिलेगा. बट इमेजिन इतना लेट आने के बाद इतने जल्दी नंबर 1 T20 बैटर बनना, कैप्टन बनना इंडिया का. सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एज वेल. बट या आई थिंक सूर्या का आई रिमेंबर 2017 या 18 में, जब भी 17 में ही केम बैक टू अस और 18 में आई गेस. आई थिंक 17-18 के आसपास. तो तभी लाइक पूरा इट फेल्ट लाइक एक मेजर ऐसा पीस रहता है ना कि अभी सॉर्ट हो गया अपना. सॉर्ट हो गया. हाँ. इतना खतरनाक ऑल राउंड 360 बैटर, स्पिन को अटैक कर, स्पिन को खेल सकता है, पेस खेल सकता है, ऊपर नीचे फ्लोट हो सकता है. एंड उसको लाइक दैट्स व्हाई ऑलवेज से व्हेन पीपल से कि सूर्या को पावर प्ले में मिलाओ, मत लाओ. बिकॉज व्हेन सूर्या प्लेज उसको फील्ड सेट की नहीं पड़ी है. ही इररेस्पेक्टिव से डिविलियर्स कहीं पर भी खेल लेगा वो. तो है. सो या ओके.
Who's your favorite player from MI over the years, like recently? Hardik Pandya has been my favorite, That's your all-time favorite, favorite. yeah. Okay. And Krunal Pandya also somewhat because जो bowling करता है जितना economical है वो T20 में उसको उतना limelight मिला नहीं है. हाँ. Because he's Right. very very economical. Do you prefer economical or wicket taking? मैं I prefer हमेशा economical. economical. Always. Always Bhuvi वो इतने underrated रहते हैं वो मैच जिताते एक्चुअल में Right. T20 में. T20 में वही है विकेट्स नहीं है तो भी चलेगा बट प्रेशर Runs क्रिएट मत दो, करना है. हाँ. एंड कृणाल पांड्या वो करता है फिर वो पावर प्ले में भी डालता Right. था बीच हाँ. में भी जाता था बट उसको इतना ये नहीं मिला मतलब जितना मिलना चाहिए था जितना हार्दिक को मिला. Yeah. बट आई थिंक सो मैंने I think batters in general get that limelight. Yes. कृणाल को भी जितना मिला was for his six hitting abilities. पता है एक Right. बार वो जोफ्रा को 6-4 मार दिया था. बहुत मारा था लास्ट ओवर में था, 4 बॉल खेला था. 6-4 20 रन ऐड करके चला गया था. But बट he's- कृणाल काफी अच्छा था. काफी अच्छा प्लेयर था. इन टॉकिंग अबाउट भुवनेश्वर कुमार ऑल्सो जब मैं आरसीबी का एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे दिनेश कार्तिक लोग का स्काउटिंग टीम चालू था. हाँ. उन्होंने बोला था कि भुवनेश्वर कुमार इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन इंडिया आफ्टर बुमराह. Right. ये दिनेश हाँ. कार्तिक का स्टेटमेंट It's true also, yeah. एंड जो भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग है ना वो भी बहुत अंडररेटेड की गई है Very हमारे much. इसमें. Bro, there are always memes about कि pace इसका 120 है but क्या है. But I feel it doesn't matter. तू 110 का स्पीड का डाल but अगर तू runs नहीं दे रहा है, I would prefer that over having a 140 वाला pacer who's Right. giving away boundaries ऊपर Right. easily. एंड ही इज वेरी गुड इन चोकिंग अप रन्स. हाँ, आरसीबी हाँ. के लिए हम देख रहे हैं अभी Correct. वेरी गुड. He's really good and Bhuvi काफी smart भी है bowler. Like he would trick the batter into कि अभी 3 deliveries आउट स्विंग डाले अभी एक इन स्विंग डालता हूँ अभी पेस निकाल दूंगा. सो वो सब करने में भूवी काफी माहिर है. एंड इज विटी ऑल्सो. सो आई हैड अ Right. चैट तो तभी ही वाज क्वाइट ऐसे ऑन द स्पॉट चैट था. ऐसे भी नहीं कि वी हैड सेंड द क्वेश्चंस वगैरह. जो पूछो वो फटाक से आंसर दे रहा था. ओके सो हम अभी ऐसे भी वैसे भी हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट Right. टीम्स. इन दिस सीजन आपको क्या लग रहा है किसके चांसेस बहुत अच्छे हैं? एमआई के फैन हम तो है ही है. Like teams in टीम्स general? या इन जनरल. I feel Punjab Kings is doing. मैं MI बोलूंगा it's biased of Biased, course. obviously. But Punjab Kings especially because of Shreyas Iyer. वो एक प्लेयर इतना स्मार्ट कैप्टन है. I remember मेरे अभी भी पोस्ट या फिर वीडियोस रहेंगे जहाँ मैं 2018 में या 17 में बोल रहा हूँ कि अय्यर शुड बी द कैप्टन इन 2027 वर्ल्ड कप. हाँ. इतना अच्छा था तभी से. इमेजिन करो दिल्ली कैपिटल्स और तभी डेयर डेविल्स थे जब श्रेयस अय्यर टुक ओवर. 5 साल दे हैडंट क्वालिफाइड. गंभीर आया जिसने केकेआर को जिताया वो भी कुछ कर नहीं पाया. मिड सीजन अय्यर को दिया ही क्वालिफाइड द मैच. फोर्थ पहले लाया था फिर थर्ड लाया फिर फाइनल्स भी लेके आया इन 2020. राइट. सो इट टेक्स मतलब काफी अंडररेटेड कैप्टनसी है वहां पर. Right. फिर आई रिमेंबर ही गॉट इंजर्ड फॉर अ सीजन व्हिच वाज द वर्स्ट थिंग टू हैपन. क्योंकि ये मुझे हमेशा लगता है बायलैटरल्स को इतना सीरियसली मत लो. ऐसे डाइव वाइव मारते हो ना कुछ अचीव नहीं कर रहे हो. आपका पूरा सीजन जाएगा आगे जाकर. यू नीड अ कप जिसपे वी नीड यू फिट. राइट. तो आई डोंट लाइक दीज अश्विन बुमराह एंड दीज श्रेयस अय्यर्स यू नो गोइंग फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल. आई नो आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है Right. बट यू होल्ड फार मोर वैल्यू व्हेन यू आर फिट. राइट. तो एक 4 मत बचाओ चलेगा 4 जाएगा. आप 4 विकेट एक्स्ट्रा ले लोगे. Right. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. तो अय्यर का वो वहां पर उसका आई थिंक कैप्टनसी का रेस डीरेल हुआ था. आई थिंक वेस्ट इंडीज सीरीज थी या West कुछ Indies तो थी series जस्ट था. बिफोर आईपीएल. तभी गॉट इंजर्ड. फिर ऋषभ पंत को कैप्टन दिया. एंड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ टीम पॉइंट ऑफ व्यू कि दिल्ली को दिल्ली का फेस चाहिए. Right. श्रेयस अय्यर आफ्टर ऑल इज अ मुंबईकर. तो दैट्स व्हाई दिल्ली को ऋषभ को पुश किया. दैट ऋषभ वाज अ बिग फेस बिग ब्रांड तभी. टीम इंडिया के सेटअप में भी अय्यर वाज स्टिल फाइंडिंग हिज स्पॉट. So I think that was a gamble that they took. It didn't work out for them. Right. But then Shreyas got KKR का KKR chance. का He chance. showed it वहाँ पर भी कि I Yeah. can win it. अभी KKR एक साल में तो इतना कुछ नहीं, कल्चर कुछ शिफ्ट नहीं नहीं कर होगा. पाया. कुछ नहीं कर पा रहे अभी. And suddenly Punjab is doing well. So it takes a lot of effort. जो श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी है, रोहित शर्मा का, Right. धोनी का, it's brilliant. काफी छोटे छोटे डिटेल्स रहते हैं बट इट्स वेरी स्मार्ट. बट श्रेयस अय्यर का एक चीज बुरा लगता है जब केकेआर जीता था पूरा क्रेडिट गंभीर को गया था Yeah. फॉर हिज कैप्टनसी कि भाई गंभीर पूरा मास्टरमाइंड था और वो हुआ था. बट जो पास्ट देखा जाए और श्रेयस अय्यर Right. का रिकॉर्ड देखा जाए इट्स बिकॉज ऑफ हाँ, श्रेयस अय्यर. of ऑब्वियसली course, टीम yeah. वर्क्स तो है ही है हाँ. बट ऑन फील्ड डिसीजन तो श्रेयस अय्यर ही वही ले तो. रहा एंड इट्स फनी ना मतलब गंभीर फैंस जो पूरा सीजन 10 साल से रो रहे हैं कि क्रेडिट एक को मत दो सबको दो. हाँ. द मोमेंट ही गॉट द कप दे लाइक ये गंभीर नहीं जीता है. So I think it's a little too much from them also. But I get it. Like गंभीर भी काफी डेडिकेटेड बंदा है. बट वो मीम के इसमें दोनों एक्सट्रीम एंड्स चले जाते हैं दोनों. ओके सो श्रेयस अय्यर की बात हो गई एंड आपकी फेवरेट किंग्स 11 पंजाब थी जैसे आप बोल रहे हो इस Like this season I feel they were Yeah, very strong. very Like strong. leaving MI aside because I'm Yeah. not allowed to pick. But तो फिर पंजाब किंग्स काफी strong लगे. Right. So if you ask me, I think Delhi
बिकॉज केएल Okay. राहुल, हाँ. आशुतोष शर्मा, यंग टीम, एकदम यंग टीम है, ऐसे बड़े नाम नहीं है, बराबर, हाँ. बापू, अक्षर पटेल, हाँ. वो एक And dedicated बंदा है. डेडिकेटेड हाँ. बंदा है. जैसे लास्ट टाइम उनको कमेंटर ने पूछा मैच कहाँ गया, एमआई के पास. And that was like Yeah. my एकदम funniest part. And that helps, huh? Yeah. If you have a captain जो constant ऐसा nag कर रहा है ना कि जीते क्यों नहीं, ये नहीं. हाँ. Rather have a chill guy who takes a match for a match. And जीते तो जीते, अच्छा है. But I feel अक्षर पटेल को like fun में लोग लेते हैं, but he's very smart Very also. smart. वो aware रहता है गेम में क्या चल रहा है. And he's quite मतलब he knows what is to be done in this situation. Right. And अगर हारने के बाद भी ज़्यादा दिल पे नहीं लेता वो, which I love about him. That's right. एकदम फन वे में हुआ था वो इंटरव्यू में भी हमने देखा. बट ओवर द टाइम ना अक्षर पटेल की बैटिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है, बॉलिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है. Perfect जडेजा रिप्लेसमेंट आफ्टर 1-2 years. Yeah. और he's already retired in T20s वो तो तो आई है. है. But ODIs में भी post जडेजा he's the right one over there. फील्डिंग भी अच्छी है यार. वो क्या अड़ाया था उसने, सूर्या तिलक किसका तो 6 था ना. 6 था बहुत. I एक हाथ watched से. it live सामने Yeah. स्टेडियम से. अरे भाई क्या कर रहा है. Good fielding. Very good. सो अगर हम बात करें दिल्ली की भी, 3 मैचेस कंटिन्यूसली जीती है सीजन. सो आई फील that team is also very good this time. Very good. Yeah. It's surprising. Like Yeah, it's very surprising. Teams Punjab, Delhi और RCB are at the top of the table. जो हमेशा नीचे रहते थे. So, but it's good to see यार. मतलब अच्छा खेल रहे हैं. So Right. they deserve that spot right now. But I still feel it's too early to judge. ये वो सारे तो teams है. जो ऊपर है ना, they are the ones जो second half सेकंड में नीचे भी आ सकता है. प्रेशर में काफी फंबल होते हैं वो लोग. Right. दिल्ली मुझे याद है 2020 में एमआई और दिल्ली का रेस चल रहा था. 2020 फर्स्ट ऑफ द सीजन वी वर लाइक 6, वो भी 6 आ गए, 8 गए वो, हम 8 आ गए. बट द मोमेंट सेकंड हाफ स्टार्टेड, जब प्रेशर रहता है कि नाउ यू हैव टू विन, या फिर मतलब जो भी रहेगा यू क्लोज टू द प्लेऑफ्स, तभी से एमआई कंटिन्यूड विनिंग, क्योंकि एमआई का तो मसल मेमोरी है कि सेकंड हाफ तो जीतता है. दिल्ली हैड फंबल्ड अ लॉट, फिर कैसे वैसे वो आकर सेकंड फिनिश कर दिए थे. बट वो है क्योंकि आशुतोष शर्मा क्या फिनिशिंग कर रहे हैं एंड में. बहुत अच्छा. फिर विपराज निगम क्या प्लेयर्स लाए. मतलब आईपीएल का स्काउटिंग ही देखा जाए ना तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है. आई थिंक इट्स जस्ट गेटिंग बेटर एवरी ईयर यार. मजा आते जा रहा है. अभी आयुष म्हात्रे 17 ईयर ओल्ड, वैभव सूर्यवंशी 15 राइट 14. हाँ, he picked when he was 13 and now he's 14. फर्स्ट बॉल पे 6 मारा. 6 मारा यार, and वो 20 पे 36 मार के रो रहा था. अनबिलीवेबल. मतलब सो गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें आपके लिए आईपीएल में, आप इतना टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू हैव बीन द फैन, एनएमआई के साथ भी यू आर अ पार्ट ऑफ इट. सो बेस्ट मोमेंट्स आईपीएल के लिए आपके लिए क्या रहे हैं? IPL के, not as an MI fan. First we'll talk about IPL, then we'll jot it down to MI fans. Oh, iconic has to be Ponting and Sachin walking in together. Yeah. Like I think वो bend हुए थे Right. to pick up that, because like clear the हाँ. pitch. तो वो काफी iconic moment था मेरे लिए. वो तो बेस्ट था. मतलब सचिन तेंदुलकर पॉन्टिंग बैटिंग टुगेदर. Right. Beautiful sight to watch. A few others would be, I think, मैं ज़्यादा MI centric ही सोच रहा हूँ actually. एमआई का बता दो. तो MI का this is has to be one. फिर 2013 में मेरे हिसाब से the moment we won the cup, तभी we had already won the Champions League. Yes, we had तो won the Champions कप League. जीतने का आदत हो गया था, हाँ. but IPL बाकी था. राइट. So वो जब जीते थे and रोहित had run, that was special for me कि हो गया. This was one thing because तभी ना as a cricket fan अब ऐसा लग रहा था हमने सब अचीव किया है. T20 कप जीते, 2011 जीते, Champions Trophy was after that I think. आफ्टर हुआ था, बाद में हुआ था. But still we had won the Champions League as well. So ऐसा था कि ये एक चीज बचा हुआ है वो भी कर दो, and that was one of my special moments जीते थे. Even Rohit's run after the 2017 का final, वो जो सब पॉइंट करके भागा था ना, राइट. I think that has to be one of the वो तो special बहुत moments. अच्छा था. हाँ. स्पेशल मोमेंट्स हो गए, बट मेरे को एक जानना है कि जब What's yours for MI? For MI in general भी. For MI in general भी, कैसे first भी, was हाँ. तो watching Sachin Tendulkar, Ricky Ponting batting Together, same. yeah. together. Oh wait, I'll tell you, Harbhajan Singh and Ponting hugging each other. Yeah. IPL 2011 और 2012 में जब भी फर्स्ट ओवर में कैच लिया था पॉन्टिंग ने, Okay. हाँ. एंड दिस वाज जस्ट आफ्टर, नॉट जस्ट आफ्टर, लाइक हो गए थे 5-6 साल आफ्टर द मंकी गेट इंसिडेंट. Okay. हरभजन और पॉन्टिंग का जो भी हुआ था साइमंड्स वगैरह का. Right. सो तभी साइमंड्स बच्चे एक टीम में आ गए थे, सो दे हैड प्लेड, बट देयर वाज अ सीजन जहाँ पर दिल्ली के सामने मैच था एंड हरभजन वाज बॉलिंग एंड पॉन्टिंग हैड फ्लू लिटरली, वो ऐसा Catch व्यू, पकड़ने हाँ, के लिए, एंड ही कॉट एंड हरभजन ने उसे उठाया था. Right. सो वो भी काफी स्वीट मोमेंट था. इवन आई थिंक KL और हार्दिक हैड स्विच द जर्सीज. हाँ, वो तो बहुत बेस्ट पंजाब मोमेंट. एंड MI, पंजाब एंड पंजाब एमआई में का था ना तभी, राइट. या पंजाब एंड एमआई का जर्सी कि स्विच RCB हुआ. में था तभी KL. नो आई थिंक सो इट वाज पंजाब में ही था शायद पंजाब से, में था. हाँ. पंजाब एंड एमआई का स्विच हुआ था. वो भी काफी स्वीट था देखने के लिए. Right. आई इवन लव टू सी जब चेन्नई या फिर मुंबई जीतते हैं ना, तभी वो फैमिली पूरा फील्ड पे आ जाता है, हाँ. व्हिच डजंट रियली हैपन विद अदर टीम्स. अदर टीम्स. राइट. हाँ,
बट इन दोनों का पूरा खानदान फील्ड पे घुस गया रहता है. समायरा बहुत celebrate स्वीट कर है, रहे हैं. जिवा इज देयर एंजॉयिंग सबकी फैमिलीज. इट फील्स रियली स्पेशल. मेरा अगर एक मोमेंट बोलो ना, हरभजन सिंह ने एक मैच में बैटिंग कर रहा था हाँ. एंड बहुत सारे 6 and 4s मारे थे एंड एमआई की हालत बहुत टाइट थी. Deccan Chargers. हाँ, Deccan डेक्कन Chargers चार्जर्स को Gilchrist का मारे. हाँ. एंड क्या लंबे लंबे 6 मारे थे. 2010 शायद से. 2010 के हाँ. आसपास. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टीम एंड ऑल. फटाफट विकेट्स गए थे. फटाफट विकेट्स गए थे. एमआई का हाँ. बहुत लो चल रहा था और हरभजन ने आके 50 के आसपास कुछ Right, रन्स right, मारे थे आसपास. हाँ. एंड वो मोमेंट अभी तक है, मतलब फ्रेश क्या है खेला अभी था. भी. You said it तभी याद है. This was ऑफ कोर्स समर्स ही रहेगा बिकॉज़ मेरा समर वेकेशन चल रहा था. कजिन्स आए थे मेरे और साथ में देख रहे हैं. जस्ट नीचे खेल के घर पे पहुंचे. And watching you like यार I think so I don't know the score but like rightly said कि वाट लग गई थी बैटिंग में. बाट लग गई थी बैटिंग में. And Harbhajan comes in and started hitting everywhere. I don't know if it happened after that but I had noticed उसके बाद हर टाइम उसका ऑलराउंडर लिख के आया था. ऑलराउंडर लेके आया. उसके बाद उसके ही बाद ही हुआ था. उसके बाद ही हुआ था. उसके पहले कभी ऑलराउंडर नहीं था. उसके बाद हरभजन सिंह became an ऑलराउंडर. all-rounder. तो वो मुझे अच्छे से याद है. Noticing in the next match he is an all-rounder now. Right. So yeah, these moments. Okay. So Dhoni for CSK, हाँ. Virat for RCB, Rohit for MI. How can you compare the legacies emotionally? I think I'll start off with the easier one, RCB वाला. I think it has become synonymous for RCB fans कि यार ये अपना ही आदमी. And they don't care कि कप लाओ मत लाओ. Many people even say कि कोहली हमारा कप है, which is a beautiful thing to say. But you should try the actual cup. ज़्यादा better रहता है वो. But I feel कोहली पे बहुत लोड है यार. मतलब कितना करेगा बंदा. अकेला कितना कर लेगा वो. 1000 रन नहीं, कितना 973 मारे थे. 2016. इट्स नॉट अ जोक टू स्कोर 970. बटलर का इतना सही सीजन था फिर भी ही फेल शॉर्ट ऑफ कोहली. राइट. इतना करने के बाद भी अगर एक टीम सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द लेट्स से द मैनेजमेंट ओवर द इयर्स. एंड यू कांट कंप्लेन कि बॉलर्स नहीं है भाई. 18 साल में बॉलर्स नहीं ले पाए. राइट. And you say this when you had Stark, you had lots of bowlers. बड़े बड़े प्लेयर्स. सिराज. हाँ. ऑन पेपर आरसीबी का टीम सबसे अच्छा दिखता था. Exactly. डिविलियर्स, क्रिस गेल, हाँ. केएल राहुल, कोहली, शेन वॉटसन, तभी सरफराज खान था. चहल, फिर बहुत लॉट्स अच्छा ऑफ. हाँ, सो आई थिंक आरसीबी ऑलवेज हैड द प्लेयर्स. वो हमेशा कंप्लेन रहते. सो इट्स वेरी फनी कि ऑक्शन के बाद दे आर द फर्स्ट वन टू शाउट की बहुत बढ़िया टीम है. द मोमेंट दे स्टार्ट लूजिंग इट इज लाइक यार नहीं टीम ही नहीं है. एंड फिर दे आर लाइक नहीं कप चाहिए नहीं हमें दिल जीतने. सो आई फील इट्स अ लॉट लिविंग इन डिनायल. कप तो सबको चाहिए बट इट्स टफ टू विन इट. मेरे हिसाब से कोहली इफ ही हैड गॉट 50% ऑफ द सपोर्ट, जितना कोहली ने किया उसका 50% पूरे टीम ने मिलके भी किया रहता, आरसीबी वुड हैव डेफिनेटली वन कप्स. ब्रो एसआरएच का क्या था वो 2016 व्हेन एसआरएच हैड वन. 2016 वो वार्नर वाला कैप्टन था तभी. 190 और 200 टू विन वाज समथिंग वाज रिक्वायर्ड. एंड तभी कोहली हैड स्कोर्ड. कोहली और डिविलियर्स है जिसकी भी ओपनिंग पार्टनरशिप, गेल एंड कोहली पार्टनरशिप वाज 120 फॉर नो लॉस चेजिंग अ फाइनल जिसमें 190 चाहिए रफली या 200 चाहिए. 80 रन नहीं मार सकते with a lineup like that. It's a but I still feel a lot has to do with the culture as well. जो उन लोग का रहता है ना कि छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो वगैरह, which is fun to watch sells on social media, but मेरे हिसाब से you need to be a lot more grounded. You see the difference when an MI wins. और MI मैं खुद की क्यों बात करूँ, चेन्नई और हैदराबाद, they don't celebrate cups as much as Bangalore fans and the players and team celebrates a league win. उन्होंने लास्ट ईयर चेन्नई को हराया था ना, उसका एक थ्रोबैक ये डाल दिया कि रिमेंबर दिस डेट की इस डेट पे हम लोग ने हराया था, व्हिच इज अ लीग मैच. नो वन केयर्स अपार्ट फ्रॉम यू गाइस. सो अभी पूरा बैटल ग्राउंड का बना दिया था कि रोहित इज गोना कम टू पंजाब. जब श्रेयस ने चीयर किया था अगेंस्ट कोहली, एंड अभी जब मैच हुआ कोहली स्टार्टेड चीयरिंग अगेंस्ट. ओह राइट. उसका भी इतना हाइप कर दिया था यार. मतलब आई डोंट नो, मतलब चलो कर भी लिया प्लेयर्स ने, वो फैंस इतना बढ़ा देते ना बात, बहुत बढ़ा दिया था. किंग ने दिखा दिया है ब्रो, नहीं दिखाया. इट्स अ लीग मैच और ट्रॉफी भी नहीं जीते. हां, जस्ट काम डाउन. और उसके लिए उसको इतना हाइप कर देता है. ओके, सो ये आरसीबी एंड कोहली हो गया. एमएसडी एंड सीएसके एंड एमआई एंड रोहित का. सो चेन्नई और धोनी का आई टेल यू अभी मेरे हिसाब से बहुत ड्रैग हो रहा है, बिकॉज 2023 was the best way to exit. and मैं तभी बोल रहा था, मतलब I would to even say 2021 they had won or 22 they had won. 22 I guess. Yeah, whichever they had won that was also good one. अच्छा किया था, they had won. but ठीक है चलो 23 तो fairy tale ending था. उसके बाद I remember धोनी also mentioning जब भी ऑक्शन के वो ट्रॉफी देते टाइम भी बोला था फ्लेमिंग को जॉब डन. दो वर्डिंग्स क्लियर थे, जॉब डन करके बोला था कि हो गया उसका. आई रिमेंबर जब भी ऑक्शन के पहले जो ड्राफ्ट पिक व्हाट दे कॉल इट रिटेंशन लिस्ट देनी रहती है,
उस रिटेंशन लिस्ट के टाइम भी धोनी हैड गिवन अ स्टेटमेंट कि नाउ इट्स लाइक वी हैव डन अ जॉब, इट्स टाइम टू बिल्ड अ टीम फॉर द नेक्स्ट डेकेड. द नेक्स्ट डे मैनेजमेंट ओनरशिप whoever had put out a statement contradicting Dhoni. Our first auction pick will be Dhoni. तो I feel लाइक जो मुझे बुरा लगता है कि जो अभी के जो रीसेंट व्यूअर्स हैं उन्हें उस लेगेसी का नहीं पता. दे जस्ट सी दिस डाउनफॉल ऑफ द चेन्नई एम्पायर टू एन एक्सटेंट. जो हर्ट होता है मुझे, क्योंकि धोनी का फैन मैं भी हूँ. आई वुड वांट पीपल टू रिमेंबर धोनी फॉर व्हाट ही इज. बट ओवर द इयर्स, मैं तो अभी 23 के बाद मेरे लिए दैट हैज चेंज्ड, बट 2023 तक इट्स अ ब्रिलियंट लेगेसी यार. मतलब एक फाइनलिस्ट जो मैं चाहता हूँ हमारे सामने आए, not because it's easy to defeat them in the finals again and again, but it's fun to play against them. In fact, simple example, जो culture हम लोग बोलते हैं ना, player set करते हैं, वो management set करता है, जो fans में flow होता है. Since I was at Wankhede, बैंगलोर के सामने जब हारे थे, और हारे भी क्यों, मैच से पहले ही, you see a lot of fans heckling on the live show, like they're just teasing, चिढ़ा रहे, कर रहे. चेन्नई के सामने arch rivals, 5 championships. They, after the loss also, Chennai fans had the, क्या बोलते हैं, wisdom to be on the show. खुद से आए, yeah, sure, we'll talk. And openly they said कि नहीं, हम लोग नहीं कर रहे अच्छे से. And if we don't do it, we'd want you to win. You would never hear a Bangalore fan or these fans talk essay about anyone else. So वो जो legacy set करते हैं ना, एक tone जो set होता है कि we don't hate you guys. चेन्नई, मुंबई, हम दोनों अच्छे खेलते हैं. Let's get ahead with it. And I remember वो डर भी था यार कि लाइक इनिशियली ईयर्स में 2010 में जब हारे भाई क्या दर्द हुआ था तभी. बट दैट वाज, आई रिमेंबर, चेन्नई का खौफ था पहले. एंड यू न्यू कि रैंडम से प्लेयर्स रहेंगे, बट धोनी कुछ तो करके वो निकाल देगा. हाँ, एक टाइम भी था जब चेन्नई के अपने ओपनर्स बहुत अच्छे खेलते थे. आई डोंट रिमेंबर, मैथ्यू हेडन था. हेडन वाज देयर. आई डोंट नो इफ ही वाज ओपनिंग और नॉट. ड्वेन स्मिथ ले लिया था उन्होंने. एंड आई थिंक सो माइक हसी वाज देयर. सो उनका ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा रहता था. राइट. मकलम था बीच में. आउट ही नहीं होते थे वो लोग ओपनिंग पेयर उनका. एंड इट वाज वेरी स्ट्रांग. ब्रो, एंड आई फील चेन्नई का ना अगेन वो चिल सीन्स वाला बहुत है. मूविंग फॉरवर्ड मुझको जानना है रोहित एंड एमआई का रिलेशन, जैसे हमने कंपेयर किया अभी तीनों का. ब्रो काफी स्पेशल है. इमेजिन एक प्लेयर को कैप्टनसी सौंपना फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग. मतलब इतने बड़े कैप्टनसी और ट्रस्टिंग अ यंग किड कि भाई देख लेते क्या करना है. एट द सेम टाइम देयर वाज हरभजन सिंह एज एन ऑप्शन. There were lots of players who could have, and it's equally justified. जैसे अभी इस सीजन में था, like let's say if after Rohit you have to give it, it could be Surya, it could be Bumrah, it could be Hardik, it could be lots of players. जो ईशान किशन भी to an extent, मैं तो actually चाह रहा था कि अगले 10 साल के लिए you need a youngster, he was also an option. तो वैसे तभी भी फेस था. But MI has done it so brilliantly over the years कि एक प्लेयर को पिक करते and they make that decision right. And it flow, because मेरे हिसाब से ना जब भी वो देते हैं ना, like you, I won't name any other teams, but you see captaincy देने के बाद ना they doubt a lot. MI doesn't do that. तुझे दिया है तो कर लेगा. And that flows not just in the team, to us also. Imagine हम लोग को उठाकर, like YouTubers को उठाकर जो sketch comedy करते हैं, जैसे TVF, not as good as them, but scripted dialogue बोल के कुछ करना है क्रिकेट का, and एक show host करना है, are two completely different parallels. There's no skill into it apart from चलो कैमरा में comfortable है. But to tell us कि भाई आप कर लोगे. And we did a lot of mistakes. मतलब fumble हुए, the show wasn't up to the mark. But they backed us. Not once did we feel कि we are not in the right place. तो ये उनका not just flows through the players, but हम लोग के साथ भी हमने बहुत notice किया कि they'll back you, they'll trust you, and there is no doubt in their mind. ऐसा भी नहीं कि doubt है हमें, but देखते we'll act normal and let him feel comfortable. No. That is beautiful. So I think रोहित का भी तभी बहुत अच्छा हुआ था कि उसे एक youngster को back किया. तभी रोहित was the costliest player for us. He was the vice captain for Deccan Chargers just before that. He had won the cup and they had seen those captaincy. And very nice pick also because MI क्या बोला, मुंबई का फेस भी था. Like रोहित शर्मा करके बहुत तभी hype हुआ था कि रोहित शर्मा player है मुंबई का. And the way they backed him, I think the way team also marched just along with him. I think it was beautiful and it showed यार. मतलब रोहित का मुझे बेस्ट लगता है कि कितना भी टोटल रखो, he will make you sweat for it. एंड चलो धोनी का भी कैसे है ना, यू लुक एट हिम, यू नो कि ही इज थिंकिंग समथिंग, कि कुछ तो करेगा. रोहित इतना चिल लगता है, देख के लगता भी नहीं रहेगा कि ही इज पूरा प्लान बना के आया रहेगा टू चोक यू. इवन आई टेल यू दिस इज वन थिंग व्हिच आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटर्स एंड कमेंटेटर्स हैवंट मेंशन्ड. बचपन से मैं देख रहा हूँ, whenever MI gets into the final चेन्नई के साथ, and total never has been
a 200 or something which is अरे easy जीत जाएंगे. लो स्कोरिंग रहा है हमेशा. Always low scoring. But you notice रोहित इतना smart है. He knows सामने धोनी है. धोनी loves to take it deep. Right. अगर डीप लेके जाना है तो रोहित विल ग्रेजुअली वो बीच के जो ओवर्स एक आई एम नॉट सेइंग द बैड बॉलर्स बट देयर आर बॉलर्स हु यू प्रेफर टू बी इन द डेथ एंड देयर आर बॉलर्स जो मिडिल में चलो इसका खत्म कर लो एक दो ओवर तो वो ऐसे सारे ओवर्स मिडिल में खत्म कर देगा बिकॉज ही नोज धोनी विल नॉट लेट हिज टीम एक्सेलरेट स्लो खेलो जो 2017 में भी किया 130 है वाई अटैक स्लो कर रहे हैं सब ओवर्स खत्म अभी एंड में कौन बचा है मलिंगा देयर इज मिचेल जॉनसन एंड देयर इज ऐसे बुमराह तो अभी उनको खेल के दिखाओ एंड दैट इज व्हेन यू मेक मिस्टेक्स एंड उस पे एमआई आल्सो बैक्स लाइक जो टीम प्लेयर्स जो है इतना बैक करते हैं ना कि एक फील्डिंग मिस्टेक नहीं करेंगे वो ब्रिलियंट है वो ऐसा सिनर्जी में है सब लोग उधर so these things help a lot to build that legacy जो रोहित का रहा है over the years. Okay. So personally as a MI fan or being associated with MI what MI taught you about belief, hope, heartbreak and rebuilding? Oh, itna heavy, bro. I think it has taught me a lot. I think I don't know individually कैसे answer करने के question को, but simply कि trust yourself. You guys are good, and no matter कितना भी आपको लोग write off कर ले, you can still make a comeback. Okay. And another thing I would say कि इतने बार हो चुका है कि maybe एक आधा साल we were not the best team in the season, but we still won it. The reason is जैसा मड्रिड का जो माइंडसेट रहता है ना कि भाई तू आई डोंट केयर तेरा फॉर्म क्या है सामने वाले टीम क्या डिजर्व करती है तू क्या डिजर्व करता है यू हैव टू गो आउट गिव योर बेस्ट एंड विन इट जो माइंडसेट है एंड अ कपल ऑफ थिंग्स आल्सो कि अपने क्या बोलते हैं कल्चर या फिर अपने जो रूट्स से दूर नहीं जाने सो वी वोंट एवर गो अभी एक और एग्जांपल मुझे याद है जब याद है मुंबई इंडियंस हैड टू विन ताकि बैंगलोर वुड क्वालिफाई एंड बैंगलोर ने पूरा उनका लोगो ब्लू कर दिया था दिस वाज 2023 और 2022 और समथिंग एंड तभी सो सिमिलर अगले साल हुआ था वेयर वी नीडेड गुजरात टू विन नॉट वंस डिड एमआई प्लेयर्स और अस आल्सो सेड कि नहीं प्लीज जीत जाओ यू डू योर थिंग वी हैव डन हमारा काम अभी इसके आगे जो अगर होना है जीतना है जीतेगा नहीं क्वालिफाई तो नहीं हो जाएंगे सो दीज थिंग्स मैटर लॉट मेरे हिसाब से लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न कम बैक स्टोरी रिसर्च आई थिंक मैनेजमेंट का भी काफ़ी ब्रिलियंट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट है चलो इट्स अ 2 month थिंग एक आधा मंथ प्री सीजन 3 महीने का काम है इट्स अ ईयर राउंड प्रोसेस बैक योर प्लेयर्स वैसे ही बैक योर सेल्फ अपने स्किल्स को बैक करो व्हाट हैव यू लर्नड सो जो मैंने सीखा है एमआई से एक तो कम बैक फॉर श्योर सेकेंड थिंग इज टॉकिंग अबाउट बाहर के लोग बोल रहे हैं ना वो मत सुनो डू द थिंग्स जो आपको बिलीव है कि आपके टीम के लिए अच्छा होगा एंड ये हमने देखा भी है विल नॉट गेट इनटू दैट बट ये हमने पिछले लास्ट ईयर उसके पहले साल में देखा था कि इफ दैट प्लेयर इज गुड फॉर मी वी विल डू एवरीथिंग फॉर द टीम एंड उसके देख ही रहे हम अभी क्या हो रहा है करेक्ट So that's one thing that I learned that you should believe on your instinct, on your team, on your management कि ये मेरे लिए सही है तो मैं ये करने वाला हूँ. That's one thing that I've learned. I think also साथ चलो. So one family का जो है ना, I always love to have my set of people जिन्हें मैं constantly let's say अपने field में जो है like for you to be podcasters, for me to be presenters. Right. So instead of just कि नहीं मेरा है मुझे success होना, I would prefer all of us going well, all of us doing well. So ये जो चीज़ MI का है वन फैमिली they never hype up one player जो बाकी बहुत टीम्स करते हैं ये हमारा फेस है नो हमारे टीम में बुमराह भी है सूर्या भी है हार्दिक भी है रोहित भी है पोलार्ड भी है सो दैट इज वन थिंग आई रियली लव अ लॉट कि वन फैमिली का जो कल्चर है ना इट्स वन लाइक यू आर ऑल टुगेदर एंड साथ बढ़ो ओके आगे बढ़ते हैं लेट्स ये वाले क्वेश्चन थोड़े फास्ट पेस रहेंगे एकदम फास्ट आंसर करना है व्हिच एमआई मैच चेंज्ड योर लाइफ ओके आई विल पुट दिस वन जो यूवी ने रन आउट किया था 2008 और 9 में इफ आई एम नॉट इट वाज एट वानखेड़े ओनली हैट्रिक ऑफ रन आउट्स वी हैड टू विन दैट मैच ओके बट एंड इट वाजंट एज डिफिकल्ट बट 3 रन लाइक वी वर जस्ट नॉट गुड अंडर प्रेशर तभी एंड तभी जो रन आउट होके जो उससे सेलिब्रेट करके क्राउड को दिखाया था इट आई वाज वाचिंग घर पे it hurt me a lot and that was the point I would fairly call myself an MI fan कि भाई हाँ मुझे अभी I want to show it to everyone okay who is your all time favorite MI MVP and why पोलार्ड नो डाउट्स पोलार्ड भाई उसने इतना आई वुड बी सरप्राइज वो रोहित शर्मा स्टैंड के साथ साथ पोलार्ड का पुतला बना दूंगा इतना ही हैज कंट्रीब्यूटेड ओवर द इयर्स फॉर मुंबई इंडियंस देयर इज अ थ्रेड व्हिच हैड कम ऑन इंस्टाग्राम वेरी रिसेंटली 15
स्वाइप वाले कुछ तो थे वेयर 70 फॉर 4 है और 80 रन्स टू विन है, पोलार्ड ने जिता दिया. 90 फॉर 7 है हम लोग, 180 टू विन है, पोलार्ड आके जिता दिया. ही हैज डन टाइम एंड अगेन विद हिज बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग भी एंड उसके स्लेजिंग भी. भाई कितना एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो तो है, टेप लगा के आना फील्ड पे. के या फिर वो उसका और वॉटसन का हमेशा फाइट होता था. आई रिमेम्बर वॉटसन आउट भी हुआ था, शेन वॉटसन, और वो डगआउट में बैठे राजस्थान के, ये बाउंड्री जाके उसको कुछ बोल के गया. इमेजिन पिसिंग ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन हु आर नोन टू पिस यू ऑफ. वो उठ के डगआउट से उठ के ड्रेसिंग रूम में चला गया. दैट्स द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ था उस बंदे का. और फ्रेंडली बैटर भी बहुत अच्छा था ब्रावो और पोलार्ड के बीच. हाँ हाँ, दैट वाज आल्सो गुड. और वो भी चेन्नई में थे और ये मुंबई में थे, तो वो तो और भी अच्छा हुआ था. एंड आई लाइक हाउ पोलार्ड वाज ऑलवेज लाइक उसने ना अपना जान दे दिया था मुंबई इंडियंस के लिए. Many players did it, Raidu also for that matter, Rohit, of course everyone is doing it, but Pollard का जो डेडिकेशन लेवल था ना, एक जो ट्रस्ट भी था अपना, जैसे टीम इंडिया में होता था ना कि भाई धोनी है ना संभाल लेगा, वैसे जब तक पोलार्ड था गेम वाज ऑन. एंड आई हैव सीन फियर इन द आईज ऑफ CSK फैंस व्हेन आई टॉक अबाउट पोलार्ड. इट स्टिल एग्जिस्ट. खतरनाक प्लेयर था. हाँ हाँ भाई, वो 200 का क्या चेस था अपना, याद है? वो याद है. वी हैड नेवर चेस्ड 200 बिफोर दैट. राइट. 80 for 4 or 5 or something with some lots to chase, and Pollard ने कहाँ से खींच के गया था, 83 कुछ तो मारा था, then he prayed ऐसा ऊपर देख के. Right. So yeah. Okay. What hurts more, losing the 2010 final, or Rohit losing captaincy? 2010 final. Okay. Bro, I feel captaincy is still just a tag. It's about leadership जो अभी भी है सबका सेट. So मुझे उसका ज़्यादा कंसर्न है नहीं. उस मोमेंट के लिए फील होता है कि अरे something has changed right now, but it's अभी देख रहे हैं हम लोग, रोहित भी लीड कर रहे हैं, हार्दिक कैप्टन है, so it's all together एक साथ हो रहा है. But 2010 का जो लॉस था, it was devastating यार. हम लोग उस पूरा सीजन, वो that was same as 2023 वर्ल्ड कप. सब जीते, 20 के ऊपर पॉइंट्स थे हमारे ना, 22 points or something like in that, 2010. 22. अभी 14 के लिए मरते हैं लोग, 14-16 के लिए. We were dominating everyone. And थर्ड मैच कुछ तो हारे थे, मुझे याद है, बैंगलोर कुछ था, तभी कैलिस अनबीटन था उस पूरे सीजन में. बहुत सारे मैचेस ही वाज नॉट आउट ओनली. सो वो मुझे बहुत हर्ट हुआ था बिकॉज वी डिजर्व टू विन इट. सेम लाइक 23 वर्ल्ड कप. सब जीते, इसमें सब नहीं जीते थे बट ऑलमोस्ट सब जीते थे हम लोग. इफ 20 पॉइंट्स है विच मीन्स 14 मैचेस में से यू हैव ऑलरेडी वन 10 मैचेस, तो सिर्फ 4 या 3 गिन के हारे हो आप लोग. सो दैट एंड देन गेटिंग इनटू द फाइनल अगेंस्ट अ टीम जो मर के पहुंचे. चेन्नई का कैंपेन वाज कि मस्ट विन. बट उस फाइनल में आई लर्न कि इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग योर प्रेशर. अगर आपको नहीं पता, मतलब इट डजंट मैटर, जो ऑस्ट्रेलिया का भी था, दे शोड इट कि इट डजंट मैटर, यू आर द बेस्ट टीम. उस मोमेंट पे क्या कर रहे हो आप, वो इम्पोर्टेंट है. आई रिमेंबर कैचेस बीइंग ड्रॉप्ड. आई रिमेंबर एक दो इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन भी तभी even I was surprised कि अभिषेक नायर who was injured for the entire season was made to play the final. जबकि एक टीम सेट है आपकी. तो पता नहीं should we have done that or continued with the actual winning combination जो अपना था. अभिषेक is a fantastic player, was a fantastic player तभी, but वो इंजुरी से आ रहा है वापस, रिदम में आना, प्रेशर खेलना. So that hurt me a lot. Abhishek Nair could be an underrated player also. But has he played that long for MI? He has not played that long. right? 1-2 season खेला है, but I feel he's done well. Players को nurture करने में बहुत help किया. Definitely. In that perspective, 100%. बहुत सारे फिर. बहुत सारे किया. And दिनेश कार्तिक के comebacks हो गए, रोहित शर्मा के लिए. So he has helped a lot in that way. Right. And now he's helping Rohit Sharma for the 27 final World Cup. Sorry, 27 World Cup. Manifest कर लेते हैं. Okay, going forward, if MI were a Bollywood film, आपको उसको बनाना था, तो what would you title it? The Comeback Kings or something. What do you have in mind? मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ उससे. Or do you want a current name जिस पे पिक करना है और फिर we can do that also. तो मेरे दिमाग में से one family आता है, हम साथ साथ हैं. हाँ, that is good. Like that, something like that. I think हम साथ साथ types is good actually. Okay, so Pollard, Malinga, Hardik, Bumrah, Surya. You have to select only one. Who is the spine of MI? It's tough यार. अगर ये ना, you mentioned two players from different, so I think you said two bowlers. Bumrah, you said Bumrah and Pollard, Malinga, Hardik, Bumrah and Surya. You see, you've picked. Okay, I think it's tough because सारे ही spine है to an extent. इसलिए रोहित का नाम डाला ही नहीं है. हाँ, नहीं तो फिर और मुश्किल हो जाता. नहीं, I feel all of these together are the spine, and that is why MI का edge रहा है हमेशा. Okay. If you see, कभी मलिंगा बुमराह साथ मिलके हंट करते हैं, पोलार्ड हार्दिक साथ मिलके हंट करते हैं,
एंड बैटिंग में यू जस्ट एडेड सूर्या, बट आई एम अज्यूमिंग रोहित या वगैरह रहेंगे टॉप में. सो इट्स आई थिंक स्पाइन इज नॉट वन प्लेयर एट एनी पॉइंट, इट इज ऑलवेज एवरीवन. बट अगर फिर भी एक पिक करना है, आई हैव टू गो फॉर पोलार्ड. क्योंकि जब तक वो था, आई हैव सीन हिम डिफेंड. लास्ट ओवर भी लेके पीयूष चावला के सामने रोका था उसने. 9 रन कुछ तो चाहिए थे. काफी स्मार्ट प्लेयर था. सो एक पिक करना ही है, इट हैज टू बी पोलार्ड फॉर मी. Okay. So now we have to create an all-time MI11 from all the seasons. Okay, Yeah. fun. So one player from each season or 2 players from each season. We can do that. Let's do it together. Phil. Okay, done. 2008. Okay. Let's first pick. 11 ही बनाने हमको. 11 ही बनाना बहुत मुश्किल है actually. तो सबको नहीं ले सकते. तो see openers में I think we've had great openers. Right. Tough to choose, but मेरे हिसाब से जो 2008 और 9 में जयसूर्या और सचिन करते थे, हाँ. तभी के लिए. नाउ तो रोहित इंटेंट वगैरह तो आ चुका है, बट तभी के लिए इट वाज न्यू. Right. कि तोड़ते ही जाओ. सचिन विनिंग द ऑरेंज कैप इन 2010 2010, or yeah. 2009 2010 शायद से. सो आई थिंक चलो, सो किसी भी सीजन, पहला सीजन सचिन हाँ. बिकॉज ही सचिन. Okay. सेकंड में जयसूर्या. Jayasuriya. I think so. Sachin and Lendl Simmons opening. वो भी चलेगा. हाँ. ही वाज आल्सो गुड. Okay, so we keep Sachin Tendulkar, Jayasuriya. Either way, so Sachin Jayasuriya, ठीक है, Okay, done. done. Number 3. Number 3. So I think Surya is number 3 would be number good. 3 हाँ. fix रहेगा. हाँ. Surya ही है. Surya. Number 4. अच्छा, ऐसा नहीं ना कि हर सीजन से एक नहीं, उठाना है. ऐसा नहीं है. Oh, that's why I All time thought- 11 बनाना है हमको. अच्छा, From MI. across seasons. Across ना? seasons. अच्छा, I thought नहीं किस साल में खेले. साल- Okay, वो okay. तो हमको भी याद नहीं रहेगा इतने उसीलिए players. स्ट्रेस में आ गया था. नहीं, ठीक है, तो चलो. तो you said Sachin, we said Sachin, Yeah, we said Jayasuriya, Sachin, Jayasuriya. Surya, Surya. रोहित. रोहित नीचे मिडिल ऑर्डर में. He has done well in the वो middle तो किया orders. था, हाँ. ठीक है, मिडिल ऑर्डर में. हाँ. लास्ट 2 सीजन या 3 सीजन वाले मिडिल ऑर्डर में भी कभी तो इंजरी था, तभी ईशान ओपन करता था. He used to do. He can do. I He don't. can do. People और prefer पहले him top order में. काफी टाइम में खेला ही है. हाँ हाँ हाँ, पहले तो मिडिल में ही खेलता था. Okay, so Rohit in middle. हाँ. और if you want, Jayasuriya can ideally bat नीचे. Sachin also is skilled enough to bat anywhere. तो order आप decide कर लो public. मैं player 11 बता देता हूँ. तो सचिन, जयसूर्या, सूर्या, रोहित, Okay. पोलार्ड for sure, Pollard. हार्दिक, बुमराह, मलिंगा. Okay. Bravo. Slowest. He was good, but I think there are other players who we could pick. And Bravo ना अभी synonymous नहीं है with MI. वो अभी चेन्नई का ही चेन्नई का वो तो हो चुका है. हाँ. Okay. Trent Bolt. राइडू भी वैसे मुझे बहुत पसंद था बीच में. But वो भी चेन्नई का हो गया. हाँ, exactly. I would go for Bolt, right? Like he Trent said. Bolt, yeah. So 9 हो गए. हमने 2 और spinners नहीं चाहिए. लिए. चाहिए क्या इतने सारे बॉलर्स हैं तो. चलो स्पिनर्स में हरभजन सिंह. हरभजन सिंह, okay. एंड हु एल्स स्पिनर. चहल भी था मुंबई में एक टाइम पे. नहीं यार, बट तब भी सो इट्स अनफेयर फॉर अस टू से कि चहल, हाँ, चहल का लाइमलाइट वाज इन बैंगलोर, तो मैं नहीं क्रेडिट लूंगा वहाँ का. आई वुड से नॉट इन देयर प्राइम, आई एम सेइंग द वे दे प्लेड इन एमआई. Played in हाँ. MI, right. तो अभी 2 बचे हैं ना, 2 स्पिनर्स चाहिए. 2 spinners चाहिए. एक हरभजन ले लिया, हरभजन एक ही लिया, एक चाहिए. चाहिए. हु डू वी गो फॉर? कोई खतरनाक स्पिनर बोल रहे हैं. डिड वी पिक मलिंगा? We did in bowlers. We did. Yeah, in bowlers we मलिंगा, did. बुमराह एंड बोल्ट Bolt पिक किया we था. तो जॉनसन को स्किप किया हम लोगों हाँ, ने, बट Johnson. ठीक है, चलो. हाँ, एक स्पिनर कौन है यार? चहर, राहुल चहर. Not in the greatest. Greatest. उल्टा I would go for a कृणाल पांड्या. If कोई नहीं तो कृणाल लेते हैं. पीयूष चावला. Not that good. हाँ. Spinners He did MI his में. job, हाँ. Spinners रहे of course, but I'm saying कि to be picked in the all-time 11, तो I would rather go for a spinner who knows how to bat. तो कृणाल को मैं choose कर कृणाल सकता को हूँ. choose कर लेंगे. Do you have anyone else in mind spinners में? No. MI को मेरे को इतना spinners का याद नहीं है. सैंटनर भी अच्छा है, अभी ये Santner साल भी अच्छा था. कर रहा है. Yeah. पीयूष अच्छा कर चुका है. प्रज्ञान हो जाता. But we'll pick Krunal. Yeah. Because batting में और option मिल हाँ, exactly. Yeah. हाँ. Okay. It's a good lineup. good Yeah, 11, exactly. yeah. But I think we could create a B team also जो भी उतना ही अच्छा जो भी रहेगा. उतना अच्छा हाँ. रहता है, right. Okay. It was a good conversation, Kunal dude, भाई. thanks, Thank भाई. you so much for the opportunity. बहुत मजा आया. Thanks for having me यार. ऐसा मजा आ गया मुझे भी. Fun ऐसा. Insider news भी मिली काफी सारी जो आप दे सकते थे. हाँ. But it was a very interesting conversation. Yes. Thank you for the opportunity. Thanks for having me, dude.